پیاسا نہ سنا تھا، اللہ رے وفاداری شاہ سکینہ، کوثر کی تمنا میں ایسا کائے سکینہ، کہتا ہے کہ کیوں ہم کو نہ شرمائے سکینہ، جو دن تم
کی رضا جاؤ سردارو بے کس کو بھی مالک ہے خدا جاؤ سردارو قدموں سے اٹھو صبر کیا جاؤ سردارو کیا تم کو خبر دل کا جو اب حال ہے عباس زہرا کی ندائی میرا لال ہے عباس زہرا کی ندائی میرا لال ہے عباس ہے ترسا بہار موری ہوگا صلی اللہ محمد وآل محمد. گل کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے گل کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے بخشا ہے فاطمہ کی کنیزی نے وہ شرف مریم بھی چوک جاتی ہے فضا کے نام سے کہ کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور کہ کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے کہ چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل کہ چادر پروں کی تان دو اصغر پہ جبرائیل مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے مقتل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے نادا بغیر پھول کے گلدان لے گئے نادا بغیر پھول کے گلدان لے گئے ارے کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ گئے کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ گئے سارا شرف تو بوزرو سلمان لے گئے سارا شرف تو بوزرو سلمان لے گئے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد
عبادہ صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. رضوان گرامی محترم سامعین کرام، یہ جو مختصر سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں جو میں نے اپنا سرنامہ قرار دیا ہے وہ رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث جو ہمارے یہاں کا بچہ بزرگ جوان سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ذکر علی بن عبادہ، علی کا ذکر جو ہے کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کے بعد رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ مجالس ذکر علی بن ابی طالب. رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب. یعنی یہاں جو ہم بہرحال یہ زینو مجالسکم جو ہم کہتے ہیں تو شاید ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے، ہمارا ذہن پہنچتا ہے کہ آپ جب بھی مجلس کرو تو اس میں ذکر کرو علی بن ابی طالب. نا عزیزان گرامی، یعنی جو رسول اکرم پہ جو ارشاد گرامی ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ صرف مجلس تک محدود رہے نا، ہر اس اجتماع کو 2 سے 3 اگر فرد بیٹھے ہیں جہاں بھی اس جگہ کو مجلس کہتے ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ. یعنی جہاں 3 لوگ 4 لوگ بیٹھے ہیں اس جگہ کو مجلس کہتے ہیں. آپ 2 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہیں بھی کسی جگہ کسی مقام پہ، کہیں آپ تفریح کرنے گئے ہیں، کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو آپ کے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہو. یعنی ہدف رسول یہ تھا کہ جہاں بھی آپ گفتگو کریں، سیر و تفریح جائیں یا کسی جگہ گھر میں اپنے بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، تو رسول اکرم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کوئی بھی ہو اختتام ذکر علی ابن ابی طالب کے ہونا چاہیے. یعنی آپ کیسی بھی گفتگو ہوتی رہے، گفتگو ایک مومن ہے تو کیسی بھی، اس سے مراد یہ ایسی گفتگو نہیں کرے گا جو قابل قبول نہ ہو یا دل آزاری ہو کسی کی، نہ آپ کیسی بھی بات کرتے رہیں یا کسی کا واقعہ، مگر ایک موقع ایسا آئے کہ جو ہے آپ اپنے دوستوں کو تنبیہ کے لیے ایک حدیث ہی سنا دیں، ایک ذکری ایک واقعہ جس سے سب کے دل شاد ہو جائے اور جو ہے ماحول نورانی ہو جائے. یعنی مولا کائنات کا ذکر جو ہے آپ بڑے بڑے اصحاب سے آپ سنیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہو یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نہیں اپنا سمجھتے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بہرحال ذکر علی کا جو ہے اتنا مہم ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر جو ہے جاتے ہیں اور ان کی بیٹی سامنے بیٹھی ہوتی ہے جسے آج ہم ام المومنین عائشہ کہتے ہیں، وہ سامنے ہوتی ہیں اور ابو بکر کا جو کام تھا مسلسل مولا کائنات کو دیکھ رہے تھے. تو ام المومنین نے اعتراض کیا کہ بابا آپ ہم سے ملنے آئے یا علی کو دیکھنے آئے؟ کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ. یہ احسان ہے ان کا ہمارے شیعت کو، یہ احسان ہے حضرت ابو بکر کا، انہوں نے یہ سب حدیثیں ذکر کی. آج اہل سنت کا ہمارے اوپر ایک بڑا احسان ہے. آپ جو ہے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل علی سے، فضائل حسین سے، فضائل حسن سے. اگر آپ مطالعہ کریں تو جو ہمیں امید نہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. میں سے ایک صحابی تھے. یہ کسی نتیجے تک آپ کو لے جاؤں گا، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہوگی. ایک اور صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد والے محمد. برائدہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں بغض علی محسوس کرتا ہوں. صحابی رسول جس کا ایک تاریخ، جس کی اہمیت ہے، جس کا ایک مرتبہ ہے. کون؟ برائدہ صحابی رسول، برائدہ ابن شعیب.
जिनका नाम है, जिनके वालिद का नाम शुएब है, वो ये कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने दिल में बुग़्ज़ महसूस करता हूँ। ऐसा उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं कि उस दिन का ये वाक़या है कि जब रसूल अकरम तो यानी एक गिरोह आता है और उस गिरोह को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, और एक गिरोह का सरदार खालिद बिन वलीद को बनाते हैं और दूसरे गिरोह का सरदार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रावी कौन है? बुरैदा है। जिक्र कौन कर रहा है? सहाबी रसूल। वक्त तेजी से बढ़ रहा है, वाक़या जो है किसी नतीजे तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह महसूस हो गया। तो मैं जो चाहता हूँ कि बुरैदा कहते हैं कि मैं कभी कभी बुग़्ज़ अली अपने दिल में महसूस करता था, ये याद रहे। वो कहते हैं कि यमन काफिला भेज रहे रसूल, दो हिस्सों में तकसीम किया एक इज्तिमा को, एक का सरदार बनाया खालिद बिन वलीद को और एक का सरदार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को, और उसके बाद हिदायत दी कि देखो यमन को जा रहे हो, वहाँ पहुँचना अगर जंग के हालात बनते हैं, अब नहीं बनते तो माशाअल्लाह कोई बात नहीं, अगर ऐसी सूरत पेश आती है, जंग की सूरत पेश आती है, तो उस सूरत में ये दोनों गिरोह एक हो जाएंगे, और आप जब उस दोनों गिरोह एक हो जाएंगे तो उस नतीजे में सरदारी मौलाए कायनात को दी जाएगी, यानी खालिद बिन वलीद को मालूम कर दिया जाएगा उनके ओहदे से। अब अज़ीज़ान गिरामी, बुरैदा कहते हैं कि इत्तेफाक ऐसे ही होता है, हम यमन पहुंचते हैं और यमन पहुंचने के बाद जंग के हालात बनते हैं, हालात जैसे ही बनते हैं गिरोह के हिदायत के मुताबिक जैसे रसूल ने फरमाया था, हमने गिरोह को एक कर लिया, और उस सूरत में कौन बनता है सरदार? मौलाए कायनात। अब जब सरदार जिस फौज के सरदार अली हो और उसमें कामयाबी न मिले, ये मुमकिन नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जब मौलाए कायनात के हिस्से में सरदारी आती है तो आलम किसके हाथ में? अली इब्न अबी तालिब के। अब जब आलम हो अली के हाथ में और हाथ में जुल्फ़िकार हो तो बहरहाल फतह नसीब होती है। हमें पूरी जंग नहीं पढ़ना, एक नतीजे तक आपको ले जाना है कि अली की दुश्मनी होती क्या है, अली की दुश्मनी का नतीजा क्या होता है, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। बुरैदा कहते हैं कि ऐसी सूरत में जब अली के हाथ में जुल्फ़िकार हो, आलम हो, तो कामयाबी बहरहाल मुसलमानों के खाते में आती है, फतह नसीब होती है, हम जीतते हैं जंग, और उसमें माल गनीमत एक बड़ी रकम आती है, बड़ा हिस्सा जो है, यानी जिसमें काफ़ी माल हासिल होता है जिसको मुसलमानों को। अब जब ये माल हासिल होता है, बुरैदा कहते हैं, तो अब तकसीम भी कौन कर रहा है? तकसीम मौलाए कायनात कर रहे हैं। अब मौलाए कायनात ने जब तकसीम किया तो बुरैदा कहता है कि मैं मौलाए कायनात की तकसीम से राज़ी न था, और हमारे साथ 3 अफराद ऐसे और थे जो अली की तकसीम पर राज़ी न थे। यानी बुरैदा कहीं न कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो हमें बरगलाया उन 3 अफराद ने कि भैया ये जो है मामला सही नहीं चल रहा है, जो अली की तकसीम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पहले शख्स, एक बड़ी शख्सियत उठती है, हाथों में कलम लेती है और एक कागज और खत लिखता है, किसको? रसूल अकरम को, कि भाई जंग तो जीत गए, यमन पहुंच गए हैं, जंग के हालात बने, अली सरदारी मिली अली को, अली कामयाब पे होते, मगर मुझे अली की तकसीम पसंद नहीं है। ये किसको खत लिखा जा रहा है? रसूल अकरम को, सरवरे कायनात को। किसके खिलाफ लिखा जा रहा है? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को। उसके बाद बुरैदा कहते हैं कि एक शख्स ने लिखा जब खत तो दूसरा भी बढ़ा, वही काम करता है जो पहले ने किया, खत लिखा और अली की शिकायतें लिखी। उसके बाद बुरैदा कहते हैं तीसरा शख्स जुड़ता है और वो खत लिखता है किसके खिलाफ? मौलाए कायनात के खिलाफ। किसको? रसूल अकरम को। बुरैदा कहते हैं कि चूंकि मैं
पहुंचाने वाला था, तो लिहाजा मैंने खत नहीं लिखा। यानी जब मैं खत पेश करूंगा तो सारी बातें बताऊंगा, अपनी भी शिकायत और इनकी भी। खैर बुरैदा ये कहते हैं कि हालात कुछ ऐसे बने कि मैं खत ले ना जा सका, बल्कि काफिले के साथ पहुंचा मैं, यानी काफिले से थोड़ा सा आगे, यानी वो 3 और बुरैदा थे, हम 4 लोग साथ ही पहुंचते हैं, जिसके पास रसूल अकरम सरवर कायनात के पास एक और सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुरैदा क्या कह रहे हैं समाज करिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। तवज्जो चाहता हूँ कि बुरैदा कहते हैं हम 4 अफराद पहुंचे, किसकी शिकायत लेके? अली इब्न अबी तालिब के। रसूल अकरम, यार रसूल अल्लाह हमें कामयाबी मिली, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। और रसूल मुस्कुराते हैं कामयाबी के नाम सुनकर, मगर जैसे ही लफ्ज़ शिकायत रखा अपनी ज़बान पर, बुरैदा कहते हैं पहला शख्स आगे बढ़ा, अपने खत को पेश किया, उसके बाद ज़बान से भी कहता है या रसूलुल्लाह मुबारक हो, बख्शिश बख्शिश या रसूलुल्लाह मुबारक हो आपको, हम कामयाब हो गए, अली जीत गए। मगर या रसूलुल्लाह मैं अली की शिकायत लेके आया हूँ, इसलिए शिकायत क्या है कि अली ने जो माल गनीमत तकसीम किया है वो सही नहीं किया है। बुरैदा कहते हैं कि रसूल अकरम ने पहले शख्स के चेहरे से अपना चेहरा मोड़ लिया, यानी सामने वो शख्स शिकायत करने वाला, रसूल ने चेहरा घुमा लिया अपनी तरफ से, यानी रसूल का ये फेल, ये मामूली फेल नहीं, रसूल अकरम ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते पहला शख्स बड़ा शिकायत की, रसूल अकरम ने अपना चेहरा फेरा, दूसरा शख्स आगे बढ़ता, या रसूलुल्लाह मुबारक हो हमें कामयाबी मिली, मगर हम अली की शिकायत लेकर आए हैं, उन्होंने तकसीम दुरुस्त नहीं किया है। बुरैदा कहते हैं कि वही अमल रसूल ने दोहराया, फिर अपना चेहरा दूसरे से अपना मोड़ लिया। एक तीसरा शख्स बढ़ता है, वही बड़ी शख्सियत शिकायत करता है मौला की, रसूल खुदा ने अपना चेहरा मोड़ लिया। बुरैदा कहते हैं मैं भी बढ़ा, किसकी तरफ? रसूल अकरम, या रसूलुल्लाह मुबारक हो कामयाबी मिली, मगर हम अली की शिकायत लेकर आए हैं, हम अली की तकसीम से राजी नहीं है। बुरैदा कहते हैं कि तब रसूल ने चेहरा नहीं मोड़ा, मगर रसूल के चेहरे पे ऐसा गजब देखा मैंने कि जैसे यहूदियों से लड़ते वक्त लाया करते थे। अल्लाह अकबर, क्या ऐसा गजब तारी हुआ। और कहते हैं बुरैदा तुम किसकी शिकायत लेकर आए हो? अली की तकसीम अल्लाह की तकसीम है, यानी अली अगर तकसीम कर रहे हैं गोया खुदा तकसीम, यानी अली के तकसीम में शक नहीं कर सकते हो। बुरैदा कहते हैं उस वक्त जो है मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और इतना एहसास था अपनी गलती का कि महसूस ऐसा, और दुआ कर रहा था कि जमीन फटे और उसी में समा जाऊं। अब अजीजान गिरामी, जब बुरैदा कहते हैं कि मैंने जब रसूल के चेहरे पे गजब देखा तो मैं शर्मिंदा हुआ, उसके बाद मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैं अपने गुनाहों की तौबा मांगता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। मगर बुरैदा कहते हैं कि रसूल उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, यानी एक शख्स तौबा कर रहा है मगर रसूल उस फेल पे कोई अमल जो है कोई इजहार नहीं, यानी कि आपकी तौबा कबूल हुई या नहीं। बुरैदा कहते हैं महसूस ये हुआ कि अभी रसूल राजी नहीं हुए तौबा से। उसके बाद बुरैदा कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं मोहब्बत अली का ऐलान करता हूँ कि आज से मैं मुहिब्बे अली में अपने आप को शुमार करूंगा। मगर बुरैदा कहते हैं अब भी रसूल ने कोई जवाब न दिया और कोई गुफ्तगू न की। बुरैदा कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि अभी भी रसूल हमारे अमल से राजी नहीं हुए। एक मरतबा बुरैदा कहते हैं या रसूलल्लाह अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, हम दोबारा कलमा पढ़ते हैं। अब अजीजान गिरामी, यानी बुरैदा कहते हैं कि रसूल ने फिर तकल्लुफ से काम नहीं किया बल्कि हाथ बढ़ाया और मैंने कलमा पढ़ा, तो पता ये चला कि अगर अली से दुश्मनी हो जाए तो फिर शख्स सिर्फ तकवे से बाहर नहीं निकलता बल्कि वो दीन से खारिज हो जाता है। अगर अली
अली की दुश्मनी हो आपके दिल में तो सिर्फ आप तकवे से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आप दीन से खारिज हो जाते हैं। ये अमल करके बताया रसूल ने कि देखो बुरैदा जैसा सहाबी भी अगर हो वो दीन से खारिज हो जाता है, तकवे से नहीं दीन से खारिज हो जाता है और उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ता है। अज़ीज़ान किराम, ये मौलाए कायनात की ज़िंदगी है जिसने पूरी ज़िंदगी जो है अगर तलवार दिखाई तो इस्लाम के खातिर, और तलवार को अगर रखा भी तो इस्लाम के खातिर। अली अगर बोले तो इस्लाम के खातिर, अली अगर 20 साल जो है गोशा नशीन रहे तो इस्लाम की खातिर। अली ने जब भी कोई काम किया तो इस्लाम के खातिर। मस्जिद कूफा है, आज अलम मुबारक को बरामद होना है, मस्जिद कूफा है, अली हुसैन जो है जानों पर बैठे हुए हैं और प्यास का इजहार किया मौला ने कि बाबा मुझे प्यास लगी है। अली ने जैसे ही कहा कि मेरे बच्चे को प्यास लगी है, लोग उठे और दौड़े कि पानी ला के मैं पिला दूं। इसी असना में जो है मेरा मौला देखता है कि अब्बास छोटे से है और अपने सर पे मशकीज़ा लेके मस्जिद में पहुंचते हैं और पूरा जो है कपड़ा उनका पानी से भीगा हुआ है कुर्ता, इसका मौला अब्बास का। अली ये मंजर देख के गिरिया करने लगे। लोग कहने लगे कि मौला ये तो खुशी का मौका है, एक भाई निगाह हमारे आज तो मैं मेरी निगाहें देख रही है, वो तुम नहीं देख रहे हो। अब्बास मेरा लाल करबला के लिए आया है, करबला का मैदान है और हुसैन इब्न अली है। जगह जगह आपको बहुत सारी तफसील में नहीं जाना है, इसलिए कि अभी 8 मुहर्रम को भी मसाइब पढ़ना है अज़ादारों। इसलिए कि आज अलम अपने घर में जो है एक बच्चे ने, एक मोमिन ने जो है अपने घर को पुरनूर और पुररौनक बनाया है, अलम का इंतज़ाम किया है, मसाइब पढ़ना है। अज़ादारों मौला अब्बास है कि कभी खैमा लगाते हैं। एक रवायत मिलती है कि हुसैन नहीं चाहते थे मौला अब्बास से कि जंग करे। रवायत कहती है, इसे बाज़ रवायत पढ़ी तब जाती है कि अब्बास के हौसले को पस्त करने के लिए मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास कुएं को खोदो और पानी निकालो। रवायत कहती है 18 कुएं जो है मौला अब्बास ने खोदे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मौला अब्बास में कमज़ोरी पैदा हो और वो ताकत बाकी न रहे। कहीं न कहीं ये मौला ये चाहते थे। अज़ादारों जो है बार बार मौला जो है इजाज़त मांगते हैं, कौन? अब्बास की आका मुझे मरने की इजाज़त दे, मुझे जंग की इजाज़त दे। मगर जो है ये कहते इनकार कर देते हैं हुसैन कि अब्बास तुम तो लश्कर के अलमदार हो, तुम तो मरने की इजाज़त या जंग की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ। अज़ादारों जब असहाब अंसार शहीद हो गए, आसिफ का लाशा पामाल हो गया, उन्हें मोहम्मद शहीद हो गए, तो अब्बास आते हैं और कहा आका वो लश्कर ही कहाँ रहा मैं जिसकी अलमदारी करूँ। हाँ अज़ादारों अब्बास को जब ये जुमला कहा तो हुसैन ने कहा एक मरतबा भाई मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, मगर एक मरतबा अपने कुटी से इजाज़त दे दे, इसलिए कि बड़ी उम्मीद है उस आपसे। अज़ादारों अब्बास आते हैं ख़ैमे ज़ैनब पे, सलाम किया शहज़ादी गुलाम का सलाम कबूल करे। अब्बास आया है, एक मरतबा शहज़ादी बाहर आती है, समझ गई कि अब्बास किस गरज से आए हैं, किस लिए आए हैं। एक मरतबा शहज़ादी कहती हैं अब्बास खैमे में आ जाओ। अब्बास खैमे में आते हैं, दो जानू होकर बैठ जाते हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने सदा लगाई, कहा बीवियों आ जाओ, मेरा भाई जा रहा है मरने को। अज़ादारों सारी बीवियाँ जमा हो जाती है। एक मरतबा ज़ैनब कहती हैं ए बीवियों मैंने आपके पर्दे की ज़मानत जो ले रखी थी आज मैं वापस लेती हूँ, इसलिए कि मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर से रिदा कौन छीन सकता है। हाँ अज़ादारों अलगरज़ अब्बास रुखसत होते हैं और आते हैं फरात के किनारे, पानी को भरते हैं, मशकीज़े को तर किया। एक मरतबा सुलझना से कहते हैं तू भी बड़ा प्यासा है, तू भी पानी पी ले। अज़ादारों रवायत कहती है कि उस घोड़े ने
पानी को मुंह न लगाया। करबला में जानवर भी मजलूम ये हुसैन समझ रहे थे, मगर ये मुसलमान हुसैन की मजलूमी न समझ रहे थे। अज़ादारों, अब्बास पानी को भरकर अब खैमे हुसैनी की तरफ चलते हैं। अज़ादारों, एक तीर आता है, एक शख्स जो है एक लाइन छुप के वार करता है। अब्बास का दाहिना बाजू कलम होता है, एक और तीर आता है, अब्बास के बाएं बाजू में लगता है। अज़ादारों, बायां बाजू अब्बास का कलम होता है और अब मश्क सकीना दांतों में दबाए हुए अब्बास अब ये सोच रहे हैं किसी तरीके से सकीना तक ये पानी पहुंच जाए। मगर अज़ादारों, इसी असना में एक तीर लगता है मश्क सकीना पर। जब पानी बहना शुरू होता है, अब्बास ने रहवार को मोड़ा। अज़ादारों, एक आंख में तीर जब लगता है अब्बास के, तो अब अब्बास अपने दोनों जानों से ये चाहते हैं कि तीर को निकाल लूं। इसी असना में गुर्ज ऐसा लगता है सर पे कि अब्बास से संभला न गया, जीन से जमीन पर आए। अज़ादारों, ऐसा नहीं है जिसके हाथ न हो वो जमीन पर कैसे आता है, आपको मालूम है। अज़ादारों, इधर एक मर्तबा अब्बास ने सलाम आखिर कहा। अब हुसैन दौड़े हुए आए, कमर को पकड़ा। भैया, तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अज़ादारों, आते हैं करीब अब्बास के। ए मेरे लाल अब्बास, अब वो आंखें सोएंगी जो जागा करती थी, जो जागा करते थे, अब वो सोएंगे। अज़ादारों, तुम्हारे मरने से अब्बास बड़ा मैं कमजोर हो गया। ए अब्बास, तुमने कोई एक वसीयत है, एक मैं कुछ आपसे फरमाइश करना चाहता हूँ। कहा क्या है? कहा जो है, कहा मेरे लाल अब्बास, जब से तुम आए हो पूरी जिंदगी मुझे आका कहा। एक मर्तबा तुम भैया कह दो मुझे, अब्बास का भाई कहना था। रूह का फसे अंसुरी से परवाज का कर गई। अज़ादारों, जब ये आलम खैमे में पहुंचा है, सकीना ने सरो सीना पीटा। ए चचा, मुझे अगर मालूम होता कि आप वापस न आएंगे, ये सकीना कभी पानी न मांगती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ग़ज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्री। मातम हुसैन। या हुसैन, बड़ा तो अलमदा मर गया ज़ैनब, बड़ा के मर गया गाजी मेरा तराई पर। अलम बड़ा तो अलमदा मर गया ज़ैनब, बड़ा तो अलमदा मर गया ज़ैनब। चाचा ना आएंगे बाजी से बोले तो ज़ैनब, आलम से माश के सकीना को खोले तो ज़ैनब, काटा के शान जरी सो गया तराई पर। अलम बड़ा तो अलमदा मर गया
ही